So finally, I'm doing this. I made 25 lakhs through freelancing so far in my career as a video editor, as a freelancer, as a graphic designer, but mainly from video editing. And I'm not from Mumbai, Delhi, or from Bangalore. I'm from Goa. So you have hardly heard people from Goa have made this much money through freelancing, okay? And I don't know if they have never created a content. और कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मेरे पास proofs है, तुम देख सकते हो यहाँ पर. So I have made in June 1,46,600 this month, okay? In May I have made 1,63,000. In April I have made 1,47,000. So I have made 7,67,529 rupees alone this year from video editing. This number might be really big for some people and some people it will be really small. मैंने एक स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है बस इंट्रो, ठीक है. मैं लिख रहा था बट लिख नहीं पाया. आई थॉट कि पूरा कंटेंट रॉ रखते हैं. सो देखते हैं यार कैसा जाता है. ऊपर से मेरा पहला वीडियो है. आई हैव थॉट initially in the year it was my resolution like to start creating content from January itself, but I didn't. So it's June now. That's why I'm creating this content. The purpose of this video, I will show you like what I have done for the last 2 3 years and who I am. How did I make 25 lakhs? I have made most of my money through foreign clients, and I'm only working with foreign clients currently. Okay, currently, in the start of my career, I started working with Indian clients. Obviously, you won't get foreign clients in the start, but afterwards, you'd get clients. Like if you have a confidence and you know like how to get clients, then you will definitely get foreign clients, international clients. So mostly people think like it is really difficult to get foreign clients, but it's not. Okay, I will tell you how you need to get clients. So firstly, who I am. I'm Deepak Nishat and I'm from Goa. I'm 22 years old. I will turn 23 this year. I have done BCA. I have passed out almost 2 years back. How did I hop into video editing field? It's because in third year I got a laptop. Then I started creating content for myself, like earning videos. Okay, how you can make money through online, refer and earn something. That's how I got into video editing. So I started creating content. Now I need to edit video. After that, I got a laptop because I was doing a BCA. So for coding, you need a laptop. Yeah, it was not a face cam content, but it was like with a voiceover. I have got like pretty good number of views. Okay, I got a skill like video editing. I know like do pretty basic stuff. So I got to know कि यार वीडियो एडिटिंग से भी पैसे कमा सकते हैं. ठीक है. तो मैं जैसे मुझे पता चला कि हाँ ऐसे पैसे कमा सकते हैं, तो आई स्टार्टेड टू रीच आउट पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड आई गॉट माई फर्स्ट इंडियन क्लाइंट. इट वॉज नॉट दैट ईजी. ओके, बट इंडियन क्लाइंट मिलना आसान रहता है क्योंकि उनके पास बजट कम रहता है एंड उन्हें बेसिक एडिटिंग की चाहिए रहती है. ठीक है. तो मुझे पहला इंडियन क्लाइंट मिला. आई हैव अ प्रूफ, पेमेंट प्रूफ. ओके, आई गॉट पेड 300 रुपीज़ फॉर दैट वीडियो. सो शी पेड मी फॉर 5 वीडियोज़ 1500 रुपीज़. तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला. आई स्टार्टेड टू ऑन थ्रू वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन. ओके, दिस इज आई एम द फर्स्ट गाय इन माई ब्लड लाइन टू गेट इन टू दिस फील्ड, क्रिएटिव फील्ड. थोड़े और इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करा. आई स्टार्टेड टू वर्क विथ एजेंसी बैक देन. After working with few Indian clients, I got offer letter as a full-time role, but it was a remote job. I took it and I started to work with them. I got paid like 15,000 rupees. I don't remember, but I thought now let's try to get a foreign client. Hmm. So I got into Discord. I started reaching out people who used to create content in the trading niche. So I got my first international client, जो कि एरिक था. $8 पर वीडियो के मिल रहे थे. आई वर्कड विथ हिम फॉर मोर देन अ ईयर. ओके, वही जो $8 मिल रहे थे वो मैं 12 14 15 डॉलर तक समथिंग लेकर गया पर वीडियो के. ठीक है. सो उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट अ कॉन्फिडेंस. अब मुझे फॉरेन क्लाइंट मिल रहे थे. जब भी इंडियन क्लाइंट्स मिल रहे थे तभी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ इंडियन के साथ काम कर सकते हैं, हाँ पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन. बट जैसे फॉरेन क्लाइंट्स मतलब मिलने लगे तो ऑब्वियसली यू नो कि कितना पैसा मिलता है वहाँ पर, उन लोग कितना पे करते हैं, कितना अच्छा. तो जैसे एरिक मिला उसके बाद आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अदर फॉरेन क्रिएटर्स इन द सेम निश, ट्रेडिंग निश. ओके, देन आई गॉट दिस चैनल. मैं तुम्हें चैनल नाम नहीं बता सकता बट आई गॉट वन ट्रेडिंग चैनल. He was creating voiceover content. Okay, I pitched him, I closed him as a retainer, and we started to work like for 250 something dollars per month. I know, which is really low, but retainer client था, एक consistent amount मिल रहा था per month. But
थोड़े महीने बाद वही $250 400 तक पहुँच गए, ठीक है? एंड आई वर्कड विथ हिम फॉर more than 1.5 or 2 years maybe. I don't remember exactly. Maybe 1.5 years. And I have made through him like thousands of dollars only alone from him. Okay, and he was a really good guy. He used to pay me bonuses, etc., etc. And currently, I'm working with 3 4 clients. Okay, two of them are on a retainer. Like I make 850 AUD from one client and from another something 600 something, and there are other clients who pay me on per project. Okay, so I make around 1 lakh each month. Also, I do run a YouTube channel beside this. From that AdSense I have got paid like around 30,000. Now I've shown you the numbers, I've shown you what I have done. Now it's the time like how you can get your first international client and how you can retain them. Firstly, I have retained my clients like more than 1 2 years. Okay, I have worked with them on a like salary basis, you can say, like for $1,000 or 1,000 AUD or 850 AUD or something, 500 USD each month. So that's why I have made this much money alone from freelancing, and I haven't done any job beside this. Okay, this is the only job I'm doing when I got into BCA. Why I'm doing this? Because I'm making consistent money. A lot of people get like depressed or something like because freelancing is like an unstable job. Yeah, I know. यार मैंने भी देखा है यार वो, मतलब क्लाइंट्स नहीं मिलते, कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं रहते हैं. सो आई नो, इसीलिए आई स्टार्टेड टू वर्क विद क्लाइंट्स ऑन अ रिटेनर बेसिस. एक फाउंडेशन रहता है, लाइक मेरी तरफ रिस्क नहीं रहता. हाँ, मुझे पता है इतने अमाउंट तो महीने के आ रही हैं. अगर दूसरे क्लाइंट्स मिलते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स कोई आते हैं, तो आई कैन टेक दोज प्रोजेक्ट्स एंड मेक मोर मनी. आई हैव डन दैट. दैट्स व्हाई वो नंबर्स ऊपर नीचे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है. बट आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग अराउंड 1 लाख. ओके, जो कि थोड़े लोगों के लिए ऑब्वियसली आई सेड बड़ा होगा, थोड़े लोगों के छोटा होगा, बट दिस इज अ डिसेंट एंड pretty good amount to me. Like I'm the first guy making this much money in my family. So yeah, how to retain clients? Okay, how to retain clients, how to get clients. So firstly, ऊपर ऊपर से बताता हूँ, ठीक है? आने वाली फ्यूचर वीडियोस में तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब मैं तुम्हें प्रोसेस में लेके जाऊंगा यार, सीधे तरीके से, कि हाँ ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे तुम्हें और ऐसे तुम्हें क्लाइंट को अप्रोच करना है और ऐसे तुम्हें क्लाइंट को रिटेन करना है, ठीक है? पहली बात, तुम क्लाइंट ढूंढोगे कैसे? तुम्हें मतलब मुझे पहला क्लाइंट मिला था डिस्कॉर्ड से, ठीक है? तुम्हें यूट्यूब से मिल सकता है, तुम वहाँ से उनका ईमेल इंस्टाग्राम निकाल के उन्हें इंस्टाग्राम या फिर ईमेल कर सकते हो. कोल्ड ईमेल ही करना है तुम्हें, ठीक है? मास ईमेल मत करना प्लीज़, क्योंकि उन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स हर महीने मिल रहे हैं, ठीक है? सो वो तुम्हारा ईमेल क्यों ओपन करेगा, ठीक है? तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है, तुम्हें कोल्ड ईमेल ही करना है. इफ़ तुम्हें 5-10 मिनट जा रहे हैं हर एक ईमेल के ऊपर, प्लीज़ डालो 5-10 मिनट. पर्सनलाइज रखो ईमेल को, ठीक है? तब जाके तुम्हें चांसेस है कि रिप्लाई आएगा. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि रिप्लाई आएगा ही, बट रिप्लाई आएगा, चांसेस रहेगा कि आएगा. ऐसे ही मैंने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, ठीक है? इसीलिए कह रहा हूँ मैं. मास ईमेल से भी मैंने क्लाइंट क्लोज किए हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट. लाइक नहीं होते यार क्लाइंट्स इजीली क्लोज, क्योंकि अभी तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी इतना सैचुरेटेड नहीं था, इतने वीडियो एडिटर्स नहीं थे, बट अभी सभी लोग इसी फील्ड में घुस रहे हैं. सो तुम्हें ईमेल या फिर डीएम्स के थ्रू क्लाइंट को अप्रोच करना है, ठीक है? इसके बाद इफ़ तुम्हारे पास क्लाइंट आता है, ठीक है, तो तुम्हें एज अ रिटेनर उसे पिच करना है. पर प्रोजेक्ट तुम काम कर सकते हो उसके साथ स्टार्ट में, बट जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है तो तुम्हें एज अ रिटेनर ही पिच करना है उसे, ठीक है? एज अ रिटेनर को वर्क करो क्लाइंट के साथ, तभी तुम्हारे पास एक फाउंडेशन रहेगा, ठीक है? जब फाउंडेशन रहेगा तब जाके तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके तुम नए क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो. इसे एज अ फुल टाइम कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें एज अ फुल टाइम स्टार्ट में नहीं करना है. कर भी सकते हो इफ़ यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, स्टार्ट करो, करो ये काम, ट्राई करो. मैं हूँ यार यहाँ पर, मतलब मैंने थोड़ा बहुत किया है, क्लाइंट पे काम किया है, क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ, नए क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ. और रेफरल में मुझे क्लाइंट्स आते हैं, मेनली जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो रेफरल आते हैं. जो मेरे क्लाइंट्स रहते हैं मैं उन्हें ही कहता हूँ यार रेफर कर दो. इफ़ दे थिंक आई एम वर्थ इट, लाइक मैं दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकता हूँ, उनके फ्रेंड्स को, तो वो रेफ़र करते हैं. मेरे पास क्लाइंट्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनका मैं सालों से काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे रेफरल आए हैं, ठीक है? इनबाउंड क्लाइंट्स भी आए हैं मेरे पास, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ. जो इनबाउंड क्लाइंट्स रहते हैं और जो रेफरल रहते हैं, दे आर द टॉप क्लाइंट्स लोग के, ठीक है? लाइक तुम्हारे साथ वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तुम्हारे साथ, इफ़ तुम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? वैल्यू इज़ द फर्स्ट थिंग दे आर लुकिंग फॉर. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, ओनली देन दे विल वर्क विथ यू फॉर अ लॉन्ग टर्म.
नहीं तो स्टार्ट में तुम्हें वो छोड़ देंगे, डिच कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मेनली ज़्यादा लोग के साथ होता है, ठीक है। तुम्हें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे तुम्हें पता चल गया है, अब तुम्हें रिटेन कैसे करना है क्लाइंट को। रिटेन के लिए तुम्हें उन्हें ऑफर पिच करना होगा, मैंने कहा है ऑब्वियसली। तुम्हें पर प्रोजेक्ट पहले काम करो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, रिलेशनशिप अच्छा बनाओ, फिर क्लाइंट को हैज़ अ रिटेनर पिच करो, लाइक आई विल डू एक्स नंबर ऑफ वीडियोस फॉर एक्स नंबर ऑफ अमाउंट। और तुम्हें कंसिस्टेंटली टाइम पर डिलीवर करना है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैंने गलती करी है, लाइक इन द स्टार्ट आई यूज्ड टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, बट लेटर आई डिडंट। सो रिलेशनशिप लाइक बिगड़े हैं उसकी वजह से क्लाइंट के साथ। सो आई डोंट रिकमेंड दैट, ओके। तो टाइमली डिलीवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी उतना तगड़ा नहीं रहेगा तो चलेगा, बट टाइमली डिलीवरी इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन विच एवर फील्ड यू आर इन, ओके। और तुम्हें क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अपना काफ़ी तगड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट रिस्पॉन्ड करता है तुम्हें, इफ़ रिप्लाई करता है मैसेज में, ठीक है, तो तुम्हें प्रॉम्प्टली मैसेज करना है। इफ़ तुम बिजी हो तो चलेगा, कोई नहीं, बाद में रिप्लाई करो, लेकिन तुम्हें कम्युनिकेशन अपना बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सेट से बेटर रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि क्लाइंट को वो पसंद आता है काफ़ी। और एक फर्स्टली बताता हूँ तुम्हें कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा टाइमली डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरेबल्स जो तुम कमिट कर दो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही तुम क्लाइंट के साथ वो रेपुटेशन अच्छा बिल्ड करते हो, वो देखता है, हाँ, लाइक तुम जो बोलते हो तुम करते हो, ठीक है। तीसरा हो गया क्वालिटी। क्वालिटी उतना तगड़ा नहीं रहेगा तो चलेगा, बट ये दो जो है उनमें तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, ये दोनों को, कम्युनिकेशन और टाइमली डिलीवरी, ठीक है। मेरा एडिटिंग उतना तगड़ा नहीं है, ठीक है, बट आई नो व्हाट टू डू, लाइक क्लाइंट को क्या चाहिए, एंड आई एम रियली प्रीटी क्विक विथ रिप्लाईज ऑल्सो। अभी टाइमली डिलीवर करता हूँ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, तब जाके तुम क्लाइंट को रिटेन कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना मेन। फ्यूचर में मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और कंटेंट, लाइक मैं क्या कर रहा हूँ अभी, व्हाट्स नेक्स्ट प्लान क्या है, क्लाइंट को मैं लूज़ कर रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है, रिटेन कर पा रहा हूँ क्या नहीं, तुम्हें कैसे रिटेन करना है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है, क्लाइंट को कैसे पिच करना है, मैं भी सीखते रहूँगा, तुम्हें भी यार बताते रहूँगा कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑल्सो मैंने सोचा है कि लाइक हेल्प यू पीपल, आई डोंट नो आई कैन हेल्प यू और नॉट, बट आई हैव अ एक्सपीरियंस, लाइक प्रीटी गुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ वाइल नाउ, सो या आई थिंक आई कैन हेल्प यू। सो मीट लिंक है नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हो, वन ऑन वन बात करते हैं, ओके। देखते हैं तुम क्या कर रहे हो करंटली, फिगर आउट करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। सो या दैट्स इट।